Miss Safina Yassin. She is a PhD scholar at Institute of Business Management. We'll have a couple of words with her. Miss Safina, thank you very much for being with us. पहले तो ये बताइएगा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है PhD को करने की, और फिर अपने रिसर्च के बारे में हमें बताइएगा. Thank you for inviting me and giving me the platform to talk about, because in PhD this is one of the kind of experience in which you want to express a lot about the journey that you are going through. So you just want to express a lot about it, and thank you for providing that platform in which we can share our experiences as well. What was the inspiration? Actually, you question yourself a lot when you're doing PhD, because you are in that process. When you have started, you have different thoughts and different things in your mind. When you are in the middle of the journey, you think differently. When you are at the end of the journey, you have a different perceptions in your mind whether we are on the right path or not. So it's very important. When we are sitting in front of the scholars that have been through that journey, and those who want to come into that race, we need to express a lot about it so that they can be better understand the idea behind it. So what was the thinking process that I had when I was starting my journey? Actually, I was spent at that point of time when I took admission in PhD. I was in my 11th year of the professional experience, which was in advertising. And I worked in the multinational advertising agencies, at local agencies, and my previous job was at Ideal Saatchi & Saatchi when I decided to be in that field. At that point of time, what I was realizing, I am just repeating the work. I'm doing the same thing that has been done, or maybe I'm adapting the international campaigns and localizing it. So that was the gap that I have identified at that point of time, and I was working on multiple projects at that point of time. That was a cola brand, FMCGs, fast-moving consumer goods. But I also got the chance to work on some brands that were controversial in nature. Being a female and being in that field, I have to communicate with the people who are using contraceptives, maybe, because I was working with the NGOs. I was working on the P&G brand, and feminine hygiene product was the product I was working with the team. So for which we have to conduct interviews, we have to actually explore the insights, and there were issues that have been identified, and we have to incorporate in the campaigns that we are developing. But unfortunately, we have strict briefs which we have to follow. We cannot go beyond that, and it was very hard to make them understand this shot cannot be incorporated. They are talking about the values that cannot be incorporated. These are the things. Field के अंदर जब इस तरह काम किया, तो international campaigns जब हम अडैप्ट करते थे पाकिस्तान के लिए स्पेशली, तो जो फॉर्मेट और ब्रीफ्स हम इंटरनेशनल फॉलो करते थे, फॉर एग्जांपल अगर पीएनजी एक ब्रांड है, तो पीएनजी इंटरनेशनली जो ब्रीफ के साथ फॉलो चल रहा है, वो पाकिस्तान में भी उसे ही कहेगा कि हमें इनकॉर्पोरेट करना है. तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू कन्विंस देम कि आप ये चीज़ दिखा सकते हैं, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और इसे इस तरह कर लें तो ये बेहतर होगा. तो और फिर कॉन्वर्जेशंस जब आप कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एनजीओज़ के साथ हैं, आप ऐसी सोसाइटी के सेगमेंट से बात कर रहे हैं जिनकी अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है, आप जज किए जाते हैं अगर आप सर्टेन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो कंसिडरिंग दैट हमने फिर उस वक्त मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर इस गैप को फिल करना है, आई थिंक ये एग्जिस्टिंग फील्ड में ये गैप अगर फिल हो सकता तो 11 साल बहुत थे. नाउ यू नीड टू मूव टू आइदर यू हैव टू स्विच द फील्ड, और आइदर यू हैव टू क्रिएट वैल्यू विद इन दैट सिस्टम विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो आप सिस्टम चेंज करें, इससे बेहतर है आप और फिर उसका इंतज़ार करें. तो अगर आपने वैल्यू क्रिएट करना है या इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन देना है, बिकॉज क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन तो हम दे रहे थे, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के लिए आई स्विच माई फील्ड एंड केम इनटू द PhD, एंड हियर द जर्नी स्टार्टेड, एंड आई पिक द कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स एंड अनमेंशनेबल प्रोडक्ट्स ऑन विच आई हैव वर्कड. और फील्ड एक्सपीरियंस को कंबाइन किया, फिर डोमेन जब स्टडी किया, लिटरेचर को एक्सप्लोर किया, टेक्नोलॉजी को देखा, तो ये चीज़ ज़्यादा समझ में आई कि डिजिटल इज़ द प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आपको एक वेरिएशन मिलती है, जिसके अंदर आपको मीडियम एज द मैसेज इज मार्शल मकलूहन एज वन सेट, लेकिन उस मीडियम के अराउंड जो डायनामिक्स हैं और उस चेंज के साथ हम किस तरह चेंज हो रहे हैं. तो एक तो वो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और एक इसकी वजह से हम चेंज हो रहे हैं. तो वो दोनों चेंजेस को आपने कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना है, सो दैट यू कैन पिक द आइडिया एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. अच्छा, वहाँ प्रॉब्लम क्या था? कंट्रोवर्शियल एड्स या सोशली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स या अनमेंशनेबल प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आता है? एडवर्टाइजर्स हैज़ टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट
but you cannot promote that product directly because what is good for one is acceptable for another and will be rejected by the third one. अब इसे लेके किस तरह चलें, डायकॉटमी एग्जिस्ट करती है, कल्चरल सेंटिमेंट्स डिफरेंट हैं, विद इन अ कल्चर एक डिस्टिंक्शन आ रही है कि अब कैसे काम किया जाए, तो वहाँ पर ये एक गैप आइडेंटिफाई हुआ. और विद इन अ फैमिली बहुत वेरिएशन होता है. अगर आप एज फैक्टर देखें तो अगर मैं ऑलवेज का एट एक अपनी एज के फीमेल के साथ देखती हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन पीपल. लेकिन अगर मेरी फैमिली के एल्डर्स हैं, उनका एक डिफरेंट एक ब्रैकेट है जिसको अंडरस्टैंड करना डिफरेंट है. लेकिन वो डिसेंसिटाइजेशन किस तरह क्रिएट हो रही है, कंसिडरिंग दैट फिर मैंने लिटरेचर जब एक्सप्लोर किया, ये रियलाइज़ किया कि दैट इज़ इंट्रूजन. That is intrusion in the privacy, that is intrusion in your belief system, that is intrusion in your offensiveness. But I couldn't find anything that is measuring it. So that was just an observation at that point of time, that was not the hypothesis even. तो जब हम ऑब्जर्वेशन से वहाँ पे ये स्टार्ट किया कि सही है, भाई अगर साथ में बैठा हुआ है और मैं बैठी हुई हूँ और ऐड आ रहा है तो वो अनकम्फर्टेबल हुआ है. अगर रोज़ा नहीं है तो आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर इन फ्रंट ऑफ द फैमिली, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो ये सारी जो चीज़ें थी, बैक एट लिंकेजेस वर देयर, आई हैव टू कनेक्ट दैट एंड आई हैव टू स्ट्रगल कि उसको किस तरह यू हैव टू पुट इन दैट स्टोरी. तो वो कंज्यूमर से बात की, मुझे लगा ये सब मुझे ही लगता था, लेकिन जब लोगों से बात की, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, तो पता ये चला कि ये कंसर्न सबके हैं और बहुत वैलिड कंसर्न्स हैं. बिकॉज ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इस तरह के एड्स देखें. ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर इफ़ आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम दराज तो आप उसका एक्सपीरियंस पूछने के लिए मुझे नोटिफिकेशन भेजें, क्योंकि वो मेरा 3 साल का बच्चा भी यूज़ कर रहा है फ़ोन. सो दीज वर द थिंग्स जिसने मुझे रियलाइज़ किया कि शायद हमारा जो सिस्टम है वो एक तरफ जा रहा है, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ एक तरफ जा रही हैं, हमारे रिलीजियस बिलीव्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो हमें हमारा काम एज ए रिसर्चर उनको सही करना नहीं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है. उसे आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन टूल्स जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लोर कर सकें. एग्जिस्टिंग स्केल्स या इंस्ट्रूमेंट्स या क्वेश्चनर्स या टूल्स जो डेवलप हुए थे, बिकॉज आप इसका एक मरतबा अगर आप क्वेश्चन डेवलप करें, आप इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर में. नेक्स्ट स्टेप इसका ये हो सकता है. लेकिन वो आइडेंटिफाई ट्रिगर्स कौन से हैं, उस ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर मैंने रिसर्च कंडक्ट की, एक्सप्लोरेटरी स्टडी कंडक्ट की, सारे इंसाइट्स लिए, उन इंसाइट्स को देखा कि उसके पैरामीटर्स क्या है, फैमिली वैल्यूज़ किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही हैं. ये खुद ही थीम्स निकलती गई एक्सप्लोरेटरी में, किस तरह जो है वो ऑफेंड किस तरह हो रहा है. सेलिब्रिटी का एक परसेप्शन है, द एड आई हैव एक्चुअली स्टडी, इसमें मथीरा वॉज द सेलिब्रिटी दैट दे हैव यूज्ड. तो उसका एक परसेप्शन जो भी प्रोडक्ट के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है. पोजिशनिंग क्या है इस पॉपुलेशन के अंदर जहाँ बर्थ कंट्रोल कंट्रोवर्शियल है, प्लेजर के अराउंड आपको पोजिशनिंग करनी चाहिए थी या अपनी पोजिशनिंग आपको करनी चाहिए थी सेफ सेक्स के अराउंड. दीज वर द प्रोडक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो आइडेंटिफाइंग ऑल दीज थिंग्स, नेक्स्ट स्टेप हमने जो किया वो दैट वाज कि एम्पिरिकल वैलिडेशन चाहिए. ये सारी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बिकॉज हमें लग रही है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये मार्केट में एग्जिस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव आई एज अ रिसर्चर और एज अ पर्सन एज वेल एंड एज अ प्रोफेशनल एज वेल. तो उसको वैलिडेट करना भी बहुत ज़रूरी है. तो स्टडी जब एक कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट स्टडी के अंदर हम उसकी वैलिडेशन पे गए. हमने ये देखा कि ठीक है, देयर कुड बी पर्सनल लाइक नॉट बायसेस बट यू कैन जनरेट अ स्लैंट इन द न्यूज़ इवन, अगर आप बहुत अनबायस्ड जर्नलिस्ट हैं तब भी. तो हमने उसकी एम्पेरिकल वैलिडेशन की. उस वैलिडेशन में हमें पता चला कि कुछ चीज़ें ड्रॉप हो गई, कुछ चीज़ें हमारे पास सस्टेन की. जो सस्टेन की उसके अंदर ये था कि जी आप ऑफेंड होते हैं अगर आपके कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे जो जार्गन्स यूज़ हुए हैं जो कि सामने वाले को इरिटेट कर रहे हैं. एडवर्टाइजिंग में हम करते हैं, हम फैंटेसीज़ क्रिएट करते हैं. एडवर्टाइजिंग में हम सबको सब अच्छा दिखाते हैं, हम वो सुकून दिखाते हैं जो हमारा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है. अगर वो एडवर्टाइजिंग किसी को परेशान करने लगे, किसी का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने लगे, किसी की कल्चरल वैल्यूज डिस्ट्रॉय करने लगे, किसी के रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट करने लगे, तो द एडवर्टाइजमेंट इज एक्चुअली नॉट सर्विंग द पर्पस. फिर आइदर यू नीड टू चेंज इट और यू नीड टू इनकॉर्पोरेट द थिंग दैट यू आर सपोज टू डू बेस्ड ऑन द इनसाइट्स दैट यू हैव. तो बेस्ड ऑन दैट फिर वी हैव डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए थे, मैं पहले उनकी टर्मिनोलॉजीज बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट इज़ इंट्रूसिवनेस और रिएक्टेंस. क्योंकि एटीट्यूड इन दी एंड हमने मेजर करना था. एटीट्यूड मेजर करने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि इंट्रूजन कहाँ हो रही है, मुदाखलत कहाँ हो रही है कंज्यूमर के माइंड में या उसकी लाइफ में, और उसका रिएक्शन कैसे आ रहा है.
अगर आप एक चीज़ मेजर करते हैं और दूसरी चीज़ छोड़ देते हैं, तब भी आप एटीट्यूड डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो फिर हमें उसके लिए एक सेकेंड स्केल भी डेवलप करना पड़ा। मैंने अपनी पीएचडी में फिर सेकेंड स्केल भी डेवलप किया, दैट वाज रिलेटेड टू रिएक्टेंस, बिकॉज अलोन इंट्रूसिवनेस इज़ नॉट डिटर्मिनिंग द इम्पैक्ट, लाइक उसका एक रिग्रेशन वैल्यू होती है, लेकिन चलें आप इसको छोड़ दें अभी। तो लेमैन टर्म्स में एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये अच्छा इंसान किसी को मैं कहूँ तो बुराई का मुझे पैरामीटर पता होना ज़रूरी है जब मैं बताऊँगी ये अच्छा है। तो उस पैरामीटर को डिटर्मिन करने के लिए वी हैव डेवलप्ड अ सेकेंड स्केल, और फिर उसका इम्पैक्ट हमने इन दी एंड एटीट्यूड पे देखा। फिर हमारी फाइंडिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग रही। हमें लग रहा था कि अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात पता चली, वो ये कि वो जो दैट इज़ द गैप ऑफ द स्टडी, आई विल एक्सप्लोर इट फर्दर। एक आपकी क्लिकिंग सेल्फ होती है, एक आपकी एक्चुअल सेल्फ होती है। यूजुअली जो आपकी एक्चुअल सेल्फ होती है, यू आर एज अ पर्सन। क्लिकिंग सेल्फ इज समथिंग व्हेन यू आर ब्राउजिंग द हिस्ट्री ऑफ योर computer, where you can determine what is your clicking self when no one is seeing you, what you are seeing. So in that way, when I was individually having a conversation with the consumers, they were responding to a person. But when I have the empirical validation of that thing, they were responding to the questionnaire. There is no person sitting in front of them. तो वहाँ पे फाइंडिंग्स थोड़ी हमारे जो ड्रॉप हुए, आई वॉज इनिशियली थिंकिंग कि ये वाला सस्टेन करेगा, बट उसने सस्टेन नहीं किया। सस्टेन बिल्कुल डिफरेंट वाले ने किया। उसने कहा हाँ मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, बीच के अंदर अगर इस तरह का ऐड आ जाता है, मुझे अगर कोई कुकीज़ आ जाते हैं तो वो कुकीज़ आ जाते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, उसे लगता है मेरी बात सुन रहा है वो, तो वो उसका वेटेज ज़्यादा गया, रिलीजन ड्रॉप हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये थ्रू आउट जो पूरी रिसर्च थी, उसमें एक आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं, आपकी अजम्पशंस होती हैं, और फिर रियलिटी चेक जब आप उसको देते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फाइंडिंग, एंड यू डेवलप एंड यू ग्रो एज अ पर्सन एज वेल. So this was the small thing that from my side. Thank you very much. A very interesting topic indeed, and considering your gender as a researcher and the difficult topic that you've chosen, clearly tells us that you're willing to go ahead into things that you really rely on. I think as a PhD doctor myself, हम लोग researchers को इसी बात की तलकीन करते हैं, unless that you have a topic that you're very close to, something that you really want to pursue, something that can really create a difference. अगर उसी line पे काम किया जाए तो the research really becomes meaningful. I have a couple of questions, especially considering and a few of the variables that you pointed out, intrusiveness के point of view से. Now जो हमारी cultural religious values हैं, they are not specific to us only. We have a lot of cultural comparatives with our Eastern neighbors, religious values with people in the Middle East. क्या वजह है आपके नज़दीक कि यहाँ पे इस तरह का intrusiveness के ऊपर इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए, considering कि ये एक ऐसे कुछ products हैं जो कि they carry really real value in real life. यहाँ पर considering specifically talking about the word intrusiveness as a variable here, तो थोड़ा सा technical terms में बात हो जाएगी. Intrusiveness is relatively a newer concept than irritation. Irritation यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है. Intrusiveness चूँकि एक टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो होने वाला टॉपिक है, दैट्स वाई उसको एक्सप्लोर तो किया गया है, लेकिन उसका एक ही स्केल 2002 में बना था. वो स्केल 2002 में बनने के बाद उसके अंदर फर्दर जो है वो एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट थी. और मेरा जो स्केल है दैट इज़ रिलेटेड टू साउथ एशियन कल्चर, तो दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली टारगेट अ पर्टिकुलर पाकिस्तानी कल्चर, बट द कल्चर्स दैट वी आर लाइक इन okay, the cultures that we are connected to as well. So considering that obviously कुछ limitations होती हैं और future explanations होती हैं जिसमें आप further you can explore. So that was the thing जिसकी basis के ऊपर शायद यहाँ पर जो intrusiveness पे भी काम करना चाह रहा होता है specifically, वो irritation पे काम कर लेता है. That I don't have an empirical justification for that, या backing नहीं है, but that is just an observation, because irritation is काफ़ी पुराना concept, but intrusiveness is comparatively a newer concept. Right, I have a couple of questions from the audience, and they're interested about asking you, especially one of the questions is about Google Ads, which has a feature of appropriate and inappropriate search or
context. How does this, as an option, relate to the research that you have taken? Specifically अपनी study में I have not answered about the different platforms, but it's generalized instruments because obviously I'm developing the instrument but not considering the platforms in that context. That could be the future research, but I would like to answer this question because one of the respondent has highlighted this thing क्योंकि the major part of the study जो मैंने conduct किया वो कोविड के दौरान था. कोविड में हमारे पास एक लैपटॉप होता है, पूरा घर यूज़ कर रहा होता है. अगर मॉर्निंग में किसी की स्कूल की क्लास है तो वो भी वहीं आ रही है, अगर शाम में बच्चा कहीं जा नहीं सकता तो वो भी अब्बा के मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख रहा है. तो आई एम द टारगेट ऑडियंस फॉर दैट प्रोडक्ट, controversial product. I'm adult, I have a search history, I have certain things that I have I should do that because I have that certain age. But वो एक device multiple users के पास है, तो आप अगर safe search का option करते भी हैं बट आपने दराज से कुछ ऑर्डर किया हुआ था तो स्टिल दराज का वो फ़िल्टर सेफ सर्च के ऑप्शन में नहीं आएगा, वो नोटिफिकेशन तो आपके पास आएगा. तो इट्स अ होलिस्टिक थिंग. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आपके पास कुछ ना कुछ ला रहे हैं. अगर आप सिर्फ सर्च, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च से आप एक तरह ऐड के एक्सपोजर से बच सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं जो उसको एक्सपोज आपको ऐड से करवाएंगे. तो वहाँ से कैसे बचेंगे? नोटिफिकेशंस की सूरत में कैसे बचेंगे? कोई अगर आपको इनबॉक्स कर देता है कैसे चले जाएंगे? अगर आपने खुद कहीं स्पॉन्सर्ड ऐड की सूरत में आया था तो स्पॉन्सर्ड ऐड को कैसे इग्नोर करेंगे? व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, मैंने इस ऐड को इतना सर्च किया था कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपको साइट पे सारी टैब्स मिलेंगी. तो बिकॉज देयर इज़ अ सर्टन मैकेनिज्म बिहाइंड दैट, तो उसमें फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च ऐड से किसी एक तरह तो कर सकते हैं अवॉइड, लेकिन बाकी उसके जो मैकेनिक्स हैं उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे, वो फिर ऐड से ही करके ही हो सकता है. Okay, एक और फैक्टर जो आपने अपनी टॉक के दौरान मेंशन किया was the age factor of your audience. Considering a separate response expected from baby boomers, Generation X or Generation Y, do you think your research is going to be skewed towards a particular age bracket या intrusion किसी एक particular age bracket के लिए है और irritation किसी एक और age bracket के लिए? Actually, we have a different perception at different stages of life about these things. ये एक ऐसी चीज़ है, अनमेंशनेबल प्रोडक्ट्स आप जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं इसने हर कल्चर और हर तबके के लोगों को एक ही तरह से इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन सबका रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स दीज इशूज़ वर डिफरेंट, यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स वर डिफरेंट, रिलीजियस बिलीव्स वर डिफरेंट. इसीलिए इस टॉपिक के अंदर एक्सपेंशन की बहुत गुंजाइश मौजूद है. अगर मैं एज फैक्टर की आपसे बात करूँ तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर्स को डिटर्मिन कर रहा है इन दी एंड, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर व्हेन आई आस्क्ड एंड आई डेवलप दैट इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने कंज्यूमर से बात करी बिकॉज इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है. इसका दोनों फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जो मेरे ये जो क्या कहना चाहिए सैम्पल्स थे जिसके थ्रू हमने रिसर्च की डेवलप किया है, वन वाज अ कॉन्डम ब्रांड. तो ये दोनों आप डिफरेंट कल्चर के अंदर आप डिफरेंट लोगों से अगर आप इस पर कम्युनिकेट करते हैं तो सबको किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस किया है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है. आई वाज वेरी अमेज्ड टू फाइंड इट आउट कि पुराने जो हिस्टोरिकल बिफोर क्राइस्ट वाले जो नॉवेल्स थे उस नॉवेल्स के अंदर भी एक कैरेक्टर है एंड उस कैरेक्टर के अंदर उसकी पूरी एनालॉजी गिवन है. तो फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स जब मैं फाइंड आउट कर रही थी तो मैंने वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें निकाल के इनकॉर्पोरेट किए हैं. तो इन दैट केस इस टॉपिक के अंदर एक्सपेंशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरा जनरलाइजेबल टुवर्ड्स कंज्यूमर्स हो सकता है. येस, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट PhD मे बी फॉर द पोस्ट डॉक आई कैन कंसिडर दैट कि इफ़ आई वांट टू ऐड द एज एंड अदर डिटर्मिनेंट्स इन इट एंड चेक. आई थिंक इसी लाइंस पे कुछ ऑडियंस की तरफ से भी सवाल आया था कि what are the different variables you considered when you were taking up this research? Since I have developed the instruments, तो instruments के लिए तो I have not taken the variable at that point of time because that was exploratory. themes आए उससे convert हो गया, again technical थोड़ा सा आंसर होगा. After that I have picked the models. I did the scopus review जिसके अंदर I have picked the models. उन models के अंदर जो repetitive variables थे जो कि attitude को determine करने के लिए होते, because as a researcher we have to give some justifications what we are picking and what we are ignoring. तो जब हमने वो repetitive जो सबसे ज़्यादा as per the theories क्या कहना चाहिए determinants थे वो हमने निकाले.
ओन डिटर्मेंट्स में हमने गुड फॉर इकोनॉमी निकाला, लाइक आपका जो गुड फॉर इकोनॉमी का, अगर मैं जनरलाइज टर्म्स में कहूँ, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बना सके. सेकेंड वाज हेडोनिक प्लेजर, यानी प्लेजर के अराउंड अगर जो पोजिशनिंग हुई है, एंटरटेनमेंट वैल्यू अगर ऐड के अंदर गिवन है तो वो किस तरह इसको इन्फ्लुएंस करती है. सोशल रोल एंड इमेज, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम वियरिंग समथिंग, इसकी एक्सप्रेसिव वैल्यू क्या है, वॉट आई वॉन्ट टू बी परसीव्ड बाय द अदर्स इन दैट वे. तो इसी तरह हमारे और भी कुछ वेरिएबल्स थे जो हमने इनकॉर्पोरेट किया और फिर उनके इम्पैक्ट्स को जो है वो स्टडी किया कि किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं. नेगेटिव में रिएक्शन किस तरह प्ले करता है, पॉजिटिव में वो रिएक्शन किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है. तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी कि अगर हम गुड फॉर इकोनॉमी डाल रहे थे उस मॉडल के अंदर, तो गुड फॉर इकोनॉमी इतना डोमिनेट कर रहा था कि गुड फॉर इकोनॉमी इंट्रूसिवनेस के इफेक्ट को भी डाइल्यूट कर रहा था. तो हमने वहाँ पर ये फाइंडिंग में अपने लिखा कि अगर आपने इस तरह के ऐड बेचने हैं तो आप प्लेजर से निकल के उसकी पोजीशनिंग कुछ प्रोटेक्शन पे, कन्वीनियंस पे कर दें तो शायद आपके लिए अच्छा हो जाएगा. तो दैट वाज द जिस्ट ऑफ द रिसर्च के उनको वो चीज़ दिखाएं जो उन्हें इरिटेट नहीं कर रही है, उनको वो चीज़ दिखाएं जो कि एक वैल्यू क्रिएट कर रही है इन द एंड, जिस पे आप अपनी कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द परसेप्शंस व्हेन वी आर एडवर्टाइजिंग. यहाँ 2+2 4 नहीं होते, यहाँ 2+2 जो आप दिखाना चाहते हैं वो होता है. तो जो आप दिखाना चाहते हैं उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका ट्यून हुआ वो कंज्यूमर भी पहले से. Thank you very much, Ms. Safina, for sharing your research with us. I would like to thank all the three participants of today's seminar for taking their valuable time, sharing their experience with us. I'd like to thank the audience for asking pertinent questions and making this the first of its series a success. Hopefully, next time और research scholars के साथ कुछ और interesting researches और उनकी findings को सामने लेके आएंगे. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया.